Good morning, class 10th. Welcome back to Path online classes. Students, our today's topic is sharing and reviewing a spreadsheet. That is chapter number 8 of electronic spreadsheet. This is an important concept related to electronic spreadsheet, that is sharing and reviewing. आप शेयर भी करोगे यहाँ पर एंड यू कैन ऑल्सो रिव्यू द चेंजेस इन अ spreadsheet. Now, actually in this tutorial we will discuss how to share an Excel workbook with other people by saving it to a local network, and how to control access to a shared file. एक तो हमने सीखना है कि कैसे हमें शेयर करनी है एक्सेल की वर्कबुक और कैसे मल्टीपल यूजर के कंट्रोल को एक्सेस करना है टू अ शेयर्ड फाइल एंड रिजॉल्व conflicting changes. Bache, these days more and more people are using MS Excel for the teamwork. Means if you are working on a project, ठीक है, and you want to share your file with other people, ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके प्रोजेक्ट के साथ आपके और भी क्या है टीम मेंबर्स हैं जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं एंड यू वांट टू वर्क ऑन अ स्प्रेडशीट फाइल. ठीक है, आपको एक ही वर्क स्प्रेडशीट फाइल के ऊपर काम करना है, तो हम उस स्प्रेडशीट फाइल को क्या कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं. मीन्स नो नीड टू मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम स्प्रेडशीट फॉर इंडिविजुअल यूजर. इंडिविजुअल यूजर के लिए अलग अलग स्प्रेडशीट, सेम स्प्रेडशीट फाइल की अलग अलग कॉपीज बनाने की जरूरत नहीं है. आप एक ही स्प्रेडशीट फाइल को मल्टीपल यूजर्स के लिए क्या कर सकते हो, शेयर्ड फाइल बना सकते हो. मीन्स मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस अ सिंगल फाइल and make changes on that file simultaneously with the help of which feature, with the help of sharing feature. Okay, means now what is the meaning of sharing? Sharing feature is used to give access to other users to work on the same spreadsheet at the same time. It means if you are sharing an Excel file, it means you are giving other users access to the same document and allow them to make the changes or make edits simultaneously in that file. इससे क्या होगा simultaneous editing से? The simultaneous editing and real time commenting with others give you a feeling as you are sitting across a table with each other as you are miles apart. इससे आपको फील होगा कि अगर सपोज जो पर्सन्स जो पीपल उस प्रोजेक्ट के ऊपर या जो यूजर्स उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, यू आर फीलिंग कि वो एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं बिकॉज यू आर शेयरिंग दैट फाइल. ठीक है, इवन यू आर माइल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. Now where you have to save your workbook? For this, the workbook can be saved in a network location where other can easily access it. Okay, in this way we can share our file, and these are the benefits of a shared file. Means no need to make the multiple copies. ठीक है, make a single copy and you can share with, हाँ जी, you can share with multiple people. ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ आप एक ही फाइल को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. नाउ हाउ टू शेयर अ फाइल. एक एक्सेल की फाइल को कैसे शेयर किया जा सकता है. फॉर दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल. कैसे शेयर करेंगे हम. फॉर दिस लेट अस ओपन एन एक्सेल वर्कबुक. हाँ जी, मैंने एक एक्सेल वर्कबुक ओपन कर ली इन विच मैंने कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है दैट आर रिलेटेड टू, हाँ जी, दिस डेटा इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स. ओके, नाउ to make this as a shared spreadsheet workbook, you just need to click on the review tab, and in review tab the last group is your changes group, and from this changes group choose the option share workbook. This allows multiple people
to work in a workbook at the same time. मीन्स अब वो किस तरह का काम कर पाएंगे? दे कैन एंटर द डेटा, दे कैन इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स, एंड दे कैन चेंज और एड द फॉर्मूलाज एंड ऑल्सो फॉर्मेट द सेम स्प्रेडशीट. ठीक है. नाउ क्लिक ऑन शेयर वर्कबुक. A share workbook dialog box will get open. Now the very first one, check box asking you for allow changes by more than one user at the same time. This also allows workbook merging. अगर आपको allow करना है more than one user को at the same time to access this file, to make the changes in this file, to simultaneously, then check this check box. हाँ जी, इस check box को check कर लिया. Now here, अगर आपका नेटवर्क लोकेशन पर है तो हु हैज दिस वर्कबुक ओपन नाउ. इस टाइम सिर्फ ये मेरे पीसी पर ओपन है, दैट्स व्हाई इट शोज द वन पीसी नेम हियर. ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके बटन. ओके, दिस सेक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक. अभी तक इस वर्कबुक का नाम है एग्जाम्पल. मैंने इस वर्कबुक का नाम लिया है एग्जाम्पल. मीन्स दिस एक्सेल वर्कबुक इज सेव्ड विद example.xls. नाउ जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, टाइटल बार में देखिए एग्जाम्पल के आगे दिखा रहा है शेयर्ड. नाउ दिस इज अ शेयर्ड फाइल. नाउ मल्टीपल यूजर कैन यूज इट, और इसको चेंज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. आई थिंक सो क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, क्लियर हो गया. इन दिस वे यू कैन मेक योर फाइल शेयर्ड. ओके, नाउ बेटा आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉर्डिंग चेंजेस. बच्चे रिकॉर्ड करना है चेंजेस को. अब सपोज आपने इस फाइल को शेयर्ड फाइल बना दिया. अब मल्टीपल यूजर इस फाइल को क्या करेंगे? चेंज करेंगे. साइमल्टेनियसली इस फाइल के ऊपर क्या करेंगे? काम करेंगे, और इसके जो कंटेंट्स हैं उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे. अब सपोज यू वांट टू रिक्वायर, you may be required to record all the changes done by you and other users in the spreadsheet. किस लिए रिकॉर्ड करने हैं? टू रिव्यू लेटर. ठीक है, आपको बाद में रिव्यू करना है उन सब चेंजेस को. ठीक है, अब मल्टीपल यूजर्स ने इस फाइल के ऊपर चेंजेस किए एंड यू वांट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोज चेंजेस. उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हम नेक्स्ट फीचर यूज करेंगे, दैट इज ट्रैक चेंजेस. अब ये सारे चेंजेस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में उनको दोबारा से रिव्यू करेंगे कि किस चेंज को एक्सेप्ट करना है और किस चेंज को रिजेक्ट करना है. वो नेक्स्ट आता है आपके पास रिव्यू चेंजेस के लिए. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अनदर टू टॉपिक्स. वन इज योर ट्रैक चेंजेस एंड सेकेंड इज, हाँ जी, ट्रैक चेंजेस एंड सेकेंड इज रिव्यू चेंजेस. ट्रैक चेंजेस इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल द चेंजेस दैट इज डन बाय द मल्टीपल यूजर्स. ओके, अब ट्रैक चेंजेस किस तरह के चेंजेस को रिकॉर्ड करता है? जैसे आपने कुछ भी ऐड किया इन रिकॉर्ड्स के अंदर, आपने कुछ भी डिलीट किया, आपने कंटेंट्स चेंज किया, आपने फॉर्मेटिंग चेंज की, इस तरह के चेंजेस को रिकॉर्ड करेगा. जबकि जैसे आपने सपोज इस सेल की अलाइनमेंट चेंज कर दी, सेंटर अलाइन से लेफ्ट अलाइन कर दिया, तो इस तरह के चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करता. नाउ आई वांट टू यूज द नेक्स्ट फीचर दैट इज ट्रैक चेंजेस. Means I want to record all the changes done by the user. For this we will use which option? Yes बच्चे, किस ऑप्शन को यूज करना है? ट्रैक चेंजेस इन द चेंजेस ग्रुप इन रिव्यू टैब. देखो टूल टिप दिखा रहा है आपको. ट्रैक चेंजेस, ट्रैक ऑल द चेंजेस मेड टू दिस डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इंसर्शन, डिलीशन एंड फॉर्मेटिंग चेंजेस. तीन तरह के चेंजेस हैं, इंसर्शन, डिलीशन एंड फॉर्मेटिंग. फॉर दिस click on this track changes option. The very first one is, हम पहले first यूज करेंगे. हम पहले ट्रैक करेंगे चेंजेस को, फिर हम उनको रिव्यू करेंगे सेकेंड ऑप्शन से, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हाईलाइट द चेंजेस. फॉर दिस फर्स्ट ऑप्शन हाईलाइट चेंजेस पर क्लिक किया. हाईलाइट चेंजेस डायलॉग बॉक्स विल गेट ओपन. बच्चे हाँ, चेक बॉक्स ऑलरेडी चेक है, दैट इज ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग. जब भी आप एडिट कर रहे हो तो वो इन चेंजेस को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा. अब हाईलाइट विच चेंजेस, तीन तरह से के क्वेश्चन है. व्हेन, हु एंड वेयर. व्हेन, किस तरह के चेंजेस आपने रिकॉर्ड करने हैं, कब रिकॉर्ड करने हैं. सॉरी, व्हेन यू वांट टू रिकॉर्ड द चेंज, सिंस
आई लास्ट सेव्ड, या तो जब ये लास्ट टाइम वर्कबुक सेव हुई थी उस टाइम जो चेंजेस हुए थे वो रिकॉर्ड करने हैं. ओके, लास्ट चेंज के बाद के, या ऑल, या जो अभी तक रिव्यू नहीं हुए सिर्फ उन्हीं चेंजेस को रिकॉर्ड करना है. ओके, और आप कोई डेट मेंशन कर रहे हो कि इस डेट के बाद जितना भी कंटेंट चेंज हुआ है, जितने भी एडिटिंग हुई है उनको रिकॉर्ड करना है. आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड ऑल द चेंजेस, सो क्लिक ऑन ऑल. नेक्स्ट इज हु मेड द चेंजेस. ठीक है, किसके, बिकॉज मल्टीपल यूजर्स आर हियर, तो आप किसके द्वारा किए गए चेंजेस को रिकॉर्ड करना चाहते हो. ओके, एवरीवन. ओके, एवरीवन. ओके, सो एवरीवन पे क्लिक कर दिया. नेक्स्ट इज वेयर. अब यू नीड टू स्पेसिफाई द रेंज, कि वो कहां पर किस रेंज में चेंज करे जो रिकॉर्ड होने चाहिए. उसके लिए फॉर दिस क्लिक ऑन दिस बटन एंड सेलेक्ट द रेंज. अब मुझे क्या करना है, ये कंटेंट चेंज करे. ठीक है, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस रेंज. ओके, नाउ द रेंज, my range is A6 to F47. Okay, because 47 rows are here, so A6 to 47. Okay, specify the range. Next is, do you want to highlight the changes on the screen? जो भी यूजर ने चेंजेस किए उसको हाईलाइट करना चाहते हो स्क्रीन पर, तो चेक दिस चेक बॉक्स, हाईलाइट चेंजेस ऑन द screen and click on OK. Okay, no changes were found with the specified properties. To highlight all the changes, okay, suppose I want to change it. ठीक है, अब देखो अगस्त के मार्क्स मैंने चेंज कर दिए. जैसे ही मैं चेंज करूंगी 45. ओके बच्चे, जैसे ही मैंने चेंज किया ना, देखो ये सेल हाईलाइट हो गया बेटा, हाईलाइट भी हो गया, साथ में इसके टॉप पर एक छोटा सा एरो भी आ गया. ओके, एंड इट विल शो यू, जैसे ही आप उस पर कर्सर लेके जाओगे, सोनी पीसी, बिकॉज दिस पीसी नेम इज सोनी. ओके, एंड टाइम भी आ रहा है, एंड लिखा हुआ आ रहा है चेंज सेल E8 फ्रॉम 20 to 45. इस तरह से आप जिस भी सेल में जो स्पेसिफाइड रेंज थी, जो आपने स्पेसिफाई की, आप जो भी कंटेंट चेंज करोगे, इट विल शो यू दोज चेंजेस, इट विल रिकॉर्ड दोज चेंजेस. I think so it's clear how to record or how to track the changes. Hanji, for this click on to record all the changes like insertion, deletion and updation. Click on track changes and then select highlight changes, and then check the checkbox track changes while editing, and you have to specify कौन से रिकॉर्ड चेंज कर, कौन से चेंजेस को रिकॉर्ड करना है. व्हेन यू हैव टू स्पेसिफाई द, व्हेन सारी एडिटिंग को रिकॉर्ड करना है, किसने एडिटिंग की है, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट, और यू हैव टू स्पेसिफाई द रेंज. इज इट क्लियर? एंड देन क्लिक ऑन ओके. जो जो चेंजेस करोगे स्पेसिफाइड रेंज के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, वो चेंजेस क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएंगे. I think so it's clear how to track changes. Yes, now the next topic is review changes. ठीक है बेटा, अभी तक हमने इस फाइल में कितने चेंजेस किए, 2 चेंजेस किए, दैट इज इन द सेल E8 एंड यस E8 पर लेके जा रहे हैं, वो चेंज किया था हमने. 45 टू हमने किए, इसके मार्क्स 15, एंड सेल E11 रोल नंबर सीरियल रोल नंबर 6 के मार्क्स हमने चेंज किए फ्रॉम 18 to 13. ओके, नाउ व्हेन यू रिसीव अ डॉक्यूमेंट, अब आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ गया जिसमें मल्टीपल यूजर्स ने क्या किए हैं, चेंजेस किए. नाउ यू कैन स्टेप थ्रू ईच चेंज एंड डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट दैट चेंज और नॉट. अब आपको इन चेंजेस को रिव्यू करना है, क्या जो भी यूजर्स ने चेंजेस किए हैं, क्या आपको उन चेंजेस को रखना है या नहीं रखना. मीन्स यू वांट टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस और रिजेक्ट दोज चेंजेस. फॉर दिस अगेन क्लिक ऑन विच ऑप्शन, ट्रैक चेंजेस फ्रॉम चेंजेस टैब, from changes group in review tab. Click on track changes, click on accept or reject changes. This section will now save the workbook. Do you want to continue? Yes. Okay press करोगे. Now select changes to accept or reject. ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा.
which changes when not yet received. ठीक है, आपको वो सारे चेंजेस देखने हैं जो अभी तक आपने रिसीव नहीं किए या पर्टिकुलर डेट से देखने हैं. ओके, आई वॉन्ट टू रिव्यू ऑल द चेंजेस या नॉट येट रिसीव्ड, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया. हु, एवरीवन. ठीक है, किसने चेंजेस किए, किसके द्वारा किए हुए चेंजेस को देखना चाहते हो, बाय एवरीवन. एंड नेक्स्ट रेंज ऑलरेडी आपने स्पेसिफाई की थी A6 टू F7. हाँ जी, इतना क्लियर हो गया आपको? यस. नाउ क्लिक ऑन ओके बटन. बेटा इट विल शो यू द चेंजेस. ठीक है, कौन से चेंजेस किए थे? चेंजेस 1 of 2 मेड टू दिस डॉक्यूमेंट. हमने 2 चेंजेस किए थे बेटा, ये 2 चेंजेस दिखा रहा है. फर्स्ट चेंज इज चेंज सेल E8 फ्रॉम 20 टू 15. हमने रोल नंबर 3 अंजलि के मार्क्स, अगस्त के मार्क्स चेंज किए थे फ्रॉम 20 टू 15. Do you want to accept this change or reject this change or accept all changes? अगर 1 by 1 रिव्यू करना चाहते हो तो एक को एक्सेप्ट करोगे, ये देन सेकंड दिखाएगा. अगर एक्सेप्ट ऑल कर लिया, जितने भी चेंजेस हैं सबको एक्सेप्ट कर लेगा. मैंने फर्स्ट चेंज को एक्सेप्ट कर लिया. नाउ इट इज शोइंग द सेकंड चेंज, चेंज 2 of 2 मेड टू दिस डॉक्यूमेंट. यस, हमने रोल नंबर 6 चरणप्रीत के मार्क्स, अगस्त के मार्क्स चेंज किए थे फ्रॉम 18 टू 13. Do you want to accept this? Yes, accept. Okay. Now अब ये शो भी कर रहा है और इसने इस वर्कशीट में accept भी कर लिया. In this way you can share your workbook. Okay, एक वर्कबुक को शेयर भी किया जा सकता है. जितने भी मल्टीपल यूजर्स ने चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है. एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो रिव्यू दोज चेंजेस. ओके, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ट्रैक चेंजेस. आई थिंक सो दीज टॉपिक्स क्लियर. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दीज टॉपिक्स केयरफुली and try to do it practically. If you have any confusion, you can contact me. Thank you students and have a nice day.